Good morning, friends. Welcome back. Hopefully, कल का सेशन देखा. Hopefully, that settlement thing has settled within you, and hopefully things are absolutely clear as far as how to find out your accounts getting affected. Now, see, technically speaking, I could have started with the next topic. I won't say next chapter, but next topic, which is in connection to what we are doing, but it will only elevate the things that we are doing to next level. Technically, I should have done that. But me being me, somewhere I'm just searching for that perfection. Somewhere I'm just searching for that smile on your face. And that's where, in search of that perfection and in search of that smile, I'm taking one more session today, wherein there is not going to be any learning point. We are only going to repeat the things which you have done all this way. And we'll make sure that we'll stamp our authority for whatever has been done till date, and then we'll move to next level. Hope that is clear. कल के सेशन में पक्का कुछ नया होने वाला है. आज के सेशन में पक्का कुछ भी नया नहीं होने वाला है. Hope that is clear. So, but still, watch the whole session, because as I told you, it is the line of thinking which is required. हो सकता है कि अब commence business with cash, furniture and car, तो आपको याद रह गया है कि 4 accounts are getting affected: cash, furniture, car and capital. But याद नहीं रखना है वो जो आंसर आ रहा है उसके पीछे का जो कहानी है, उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, वो दिमाग में सेट करना है, ताकि आज नहीं, आज से 10 साल के बाद भी अगर आपको ये कोई ट्रांजैक्शन देता है तो फिर ऐसा नहीं आना चाहिए यार याद है तू पण हमें भूली गयो छू. That's not how we are learning. So watch the video. ठीक है. So let's start with the things. I'm still continuing with 2019 क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स थे 2019 में. हमने कल तो 3 ही कैरेक्टर लिए, एक विजय लिया, एक राहुल लिया और एक पंत लिया. ठीक है, तो आज थोड़े और कैरेक्टर्स लेते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. 2019 वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करते हुए मिला नहीं था मगर अच्छा खेले थे, तो सेलिब्रेशन तो बनता है बस. Let's start with the things. From the following transaction, find out accounts getting affected from the books of Virat's business. First one, it says, commence business with cash 20 lakh, car 25 lakh, furniture 15 lakh. No prizes for guessing. Your first account getting affected is cash 20 lakh. Second account getting affected is car 25 lakh, and third account getting affected is furniture 15 lakh. ये सब बिजनेस के अंदर आया. सामने कौन लाया ये सब? तो ओनर, जिसको सामने बेनिफिट लौटाना बाकी है. क्योंकि लौटाना बाकी है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट है तो नाम आएगा. किसका नाम आएगा? ओनर का. मगर ओनर का नाम आता है तो याद रखना, अगर वो कुछ दे रहा है बिजनेस को तो आगे सफिक्स में कैपिटल लग रहा है. अगर वो कुछ ले रहा है बिजनेस से तो आगे सफिक्स में ड्राइंग्स लगता है. होप दैट इज क्लियर. बोथ कैपिटल एंड ड्राइंग्स गांठ बांध लेना आर ओनर्स अकाउंट. एक में बेनिफिट दे रहा है, एक में बेनिफिट ले रहा है. इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन कोई भी आपको बोले, गूगल भी बोल देना तो गलत बोल रहा है. गांठ बांध लेना. Hope things are clear. Virat, it's 20, 20, 40, 50, 60 lakh. Cash is real asset, current asset. Car is real asset, non current asset. Furniture is real asset, non current asset. Virat is personal liability and non current liability. Not going on with explanation for this, because hopefully everyone should be super duper clear with this entire thing. No problem whatsoever. Moving to next one.
ट्रांसफर 40 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर्सनल होता है, करंट बिजनेस का होता है। किसका सेविंग अकाउंट? ऑब्वियसली विराट का। तो विराट के सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, तो बिजनेस के करंट अकाउंट में मनी कम्स इन, मगर बिजनेस के करंट अकाउंट में तो बैंक में पैसा आया और बैंक और कैश अलग होते हैं। कहां से आया? तो भैया वापस विराट ने दिया तो यहां पर भी कैपिटल रख देना, बोला मगर रखा नहीं, और यहां पर भी कैपिटल रख देना 40 लाख। What is bank representing? It is representing a personal account, उसमें हमारा पैसा बैंक में पड़ा है तो asset और current asset। and what is विराट representing? Personal, उसको ये लौटाना बाकी है तो liability, मगर कब लौटाएंगे? तो भैया जब बिजनेस बंद होगा तब, नॉन करंट लायबिलिटी। होप थिंग्स आर क्लियर। नंबर 3 पर आ रहा है, borrowed a loan of 30 lakhs at 8% from BOB। 8% is the rate per annum। कब भरना है? तो महीने के एंड में। NPR n अपॉन 100, तो n आएगा तब। अभी तो लोन लिया है तो n 0 है, तो इंटरेस्ट भी 0 रहेगा, तो अभी इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, BOB से लिया है, once again it's a financial institution, it's a organized sector from which we are borrowing money। कैश कभी नहीं मिलेगा, हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आया। कितना आया? 30 लाख। और किसने दिया? तो भैया 8% BOB लोन अकाउंट में। ये लिखना जरूरी है। सिर्फ BOB लिखोगे तो शायद लगेगा कि इट इज वन ऑफ माय बैंक अकाउंट, जिसमें से मैं पैसा उठा रहा हूं या जिसमें पैसा डाल रहा हूं। भैया ये तेरा बैंक नहीं है, ये बैंक एज अ सिस्टम है जिससे तूने लोन लिया है। इसलिए स्पेसिफाई कर कि क्यों BOB तेरी बुक में दिख रहा है, क्योंकि तूने उनसे लोन लिया है। और जब भी इंटरेस्ट भरना है तो भैया कितना इंटरेस्ट भरना है, तो उसके लिए प्रीफिक्स में 8%, 9%, 10%, 12% जो भी रेट है वो लिख दो, ताकि हर बार हर महीने के एंड में बैंक को फोन ना करना पड़े कि भैया कितना इंटरेस्ट देना है। नहीं, हमें पता है कितना देना है, 8%। PRN अपॉन 100, जिसमें R हमारा 8% है। कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बैंक इज पर्सनल, अपना पैसा बैंक में गया तो असेट, और ये हो गया करंट एसेट। बैंक ऑफ बड़ौदा वो भी पर्सनल है, मगर उनको पैसा लौटाना है तो ये लायबिलिटी हो गया, और उसमें मान लेते हैं कि लंबे समय के लिए, तो नॉन करंट लायबिलिटी। कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परचेज मशीन वर्थ 30 लाख फ्रॉम शामी, इज राइट आर्म फास्ट बॉलर, बहुत बढ़िया बॉलर है, हैट्रिक लिया था उन्होंने वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो यूपी से है, काफी अच्छे बॉलर है। एंड इश्यूड अ चेक ऑफ 15 लाख एंड पेड कैश 5 लाख। परचेज मशीन किया है, तो पहले तो मशीन आया कितने का? 30 लाख का। अब 30 लाख का मशीन आया तो सामने 30 लाख का पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट के नाम पर 15 लाख का चेक दिया, तो ये गया बैंक 15 लाख, और 5 लाख का कैश दिया, तो ये हुआ कैश 5 लाख। इफ यू कैन सी, 30 लाख का मशीन खरीदा, परचेज लिखना मत, मशीन लिखना, गलती मत करना। 20 लाख का पेमेंट हुआ, तो व्हाट अबाउट 10 लाख? अभी उसकी कहानी बाकी है, यानी ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट है तो नाम आएगा, किसका नाम आएगा? तो जिनसे खरीदा उनका। होप दैट इज क्लियर। मशीन इज रियल असेट, नॉन करंट असेट मान के ही चलते हैं। बैंक पर्सनल असेट एंड करंट असेट। कैश रियल असेट, करंट असेट। एंड शामी इज पर्सनल, उनसे मशीन खरीदा है, पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी, और मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर पे कर देंगे, तो करंट लायबिलिटी। वो कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स वर्थ 20 लाख फ्रॉम जसप्रीत। जसप्रीत बोले तो जसप्रीत बुमराह,
ठीक है, अभी वर्ल्ड के टॉप 3 बॉलर्स में आते हैं, काफी बढ़िया उनका कंट्रोल है। आई हैव सीन हिम लाइव लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन यूके। तो आई हैपन टू बी एट वन ऑफ द ग्राउंड वेर इन प्रैक्टिस मैच वॉज देयर, इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो जब प्रैक्टिस हो रही थी तो बाकी सारे बॉलर्स 6 बॉल डालते थे, उसमें शायद एक आधा या 2 बॉल में यॉर्कर मार के बोल्ड करते थे। जसप्रीत बुमराह ने शुरू किया, 6 बॉल डाले, 6 में से 6 बॉल यॉर्कर बोल्ड किया था। दैट इज द लेवल ऑफ कंट्रोल दैट गाय हैज। एनीवेज, नॉट गेटिंग इनटू इट, फिलहाल purchase goods worth 20 lakh from Jasprit and issued a check of 10 lakh and paid cash 6 lakh. Goods खरीदे, goods है तो टर्म आएगा परचेज, कितना 20 लाख। अब 20 लाख का गुड्स परचेज किया तो 20 लाख का पेमेंट ढूंढना है। चेक इश्यू किया तो बैंक से पैसा गया कितना 10 लाख, फिर हमने कैश दिया तो बिजनेस में से कैश बाहर गया 6 लाख, 16 लाख का पेमेंट हो गया है, 4 लाख का बाकी है, तो ये हो गया क्रेडिट। और यहां पर आएगा नाम जसप्रीत। हु इज जसप्रीत? पर्सन फ्रॉम whom business has purchased goods but to whom business is yet to pay back। तो जसप्रीत बन गया बिजनेस का क्रेडिटर। अब ये 4 लाख के लिए हम कुछ भी जसप्रीत को देंगे, पैसा देंगे, गुड्स देंगे, कुछ भी देंगे, जब तक ये 4 लाख का सेटलमेंट नहीं होता ना, जसप्रीत का स्वभाव, नेचर, लायबिलिटी करंट ही रहेगा, स्वभाव नहीं बदलेगा। याद रखना, कब तक? जब तक 4 लाख का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक। होप थिंग्स आर क्लियर। परचेज रियल है, गुड्स है, बैंक पर्सनल है, असेट है, करंट असेट है, कैश रियल है, असेट है, करंट असेट है, जसप्रीत पर्सनल है, लायबिलिटी है, जिसे गुड्स खरीदा, पैसा देना बाकी है, 1 साल के अंदर पे कर देंगे तो करंट लायबिलिटी है। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। नंबर 6, अब ये जो कॉम्बो है कल वाला ही कॉम्बो चल रहा है, तो आई वोंट चेंज द पेन, आई विल कीप इट ब्लैक, मगर ध्यान से देखना। आगे बोला है रिटर्न गुड्स वर्थ 1 लाख टू जसप्रीत। देखो जसप्रीत को हमें 4 लाख देने थे, हमारा 4 लाख से क्रेडिटर था, उसमें से हमने 1 लाख के गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी अब वो मेरा क्रेडिटर है, मगर 4 था उसमें से 1 के गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी अब वो मेरा क्रेडिटर रहा 3 लाख से। होप दैट इज क्लियर। क्रेडिटर मेरा कम हो गया क्योंकि उतने गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए, क्रेडिटर मेरा कम हो गया क्योंकि उतने गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए। अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, परचेज किया था वो गुड्स रिटर्न किया, तो गुड्स जो अंदर आए थे वो बाहर चले गए, परचेज रिटर्न 1 लाख, बाहर गए किसके पास गए? जसप्रीत के पास 1 लाख। ये रियल और ये गुड्स, ये पर्सनल लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। 4 लाख रुपए देने थे जसप्रीत को, उसमें से 1 लाख के गुड्स रिटर्न किए, यानी अब कितने देने उसको? 3 लाख। अब ये 3 लाख की कहानी के लिए नेक्स्ट वन, नंबर 7, ध्यान से देखना। इट सेज इश्यूड अ चेक ऑफ 2,90,000 टू जसप्रीत इन फुल सेटलमेंट। देना कितना था? 3 लाख, हमने कितना दिया? 2,90,000, और बोला आप सेटल। उसने भी मान लिया और हमने बोल दिया, तो जो 10,000 नहीं पे किया वो हो गया हमारा गेन, लिखना पड़ेगा, और उसको क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। पहला जसप्रीत कितना? 290 मत लिखना, 3 लाख। फिर चेक दिया कितने का? तो बैंक से पैसा गया 2,90,000, 3 लाख के सामने 2,90,000 पे किया, तो 10,000 का हमें क्या हुआ? गेन, और उस गेन को क्या कहेंगे? तो भैया डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे। जसप्रीत पर्सनल था, लायबिलिटी था, उसमें करंट लायबिलिटी था। क्यों मैं था बोल रहा हूं? क्योंकि अब जसप्रीत बुक से बाहर। 4 लाख का क्रेडिटर था, 1 लाख हमने उसको गुड्स लौटाया, 290 का हमने
चेक दिया और 10,000 का डिस्काउंट ले लिया। जसप्रीत हमारी बुक से हो गया बाहर। अब लोगे सर अभी भी मुझे तो दिख रहा है 2 more days and you'll be seeing जसप्रीत हो गया बाहर 2 more days। बैंक पर्सनल asset, current asset, discount received is nominal and gain। नंबर 8 पर चलते हैं। उसी का मिरर इमेज, सोल्ड गुड्स वर 30 लाख टू नवदीप। नवदीप सैनी वन ऑफ द मोस्ट आई विल से फियरसम बॉलर। अभी अगर मेरे हिसाब से काफी फास्ट डालते, काफी फिट है। इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ, ही डज लॉट ऑफ वर्कआउट एंड ही इज रियली इन अ गुड शेप। ठीक है, एक एथलीट कैसा होना चाहिए, तो आई थिंक नवदीप सैनी इज अ गुड एग्जांपल। आई सपोज ही इज मोर फिट इवन देन विराट कोहली। ही इज यंगर आल्सो देन विराट कोहली, बट ही इज वेरी फिट गाय। अगर अच्छा चांस मिला तो बहुत आगे जाएगा। एनीवेज, सोल्ड गुड्स वर्थ 30 lakhs टू नवदीप एंड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 18 lakh एंड कैश ऑफ 7 lakh। सोल्ड गुड्स है तो गुड्स बाहर गए, सेल्स कितना 30 लाख। अब 30 लाख का अगर गुड्स बेचा है तो सामने 30 लाख आना चाहिए। सामने क्या क्या आया है देखो, चेक आया जो हमने बैंक में डाल दिया, तो पैसा गया बैंक में कितना 18 लाख। कैश आया 7 लाख। टोटल इफ यू कैन अंडरस्टैंड आ गया 25 लाख। 5 लाख आना बाकी है, तो ये बन गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर आएगा नाम नवदीप का। Hope that is clear. So who is Navdeep? Is a person to whom business has sold goods, but from whom business is yet to receive money back. Not 30 lakhs, but 5 lakh. Navdeep is your debtor by 5 lakh. उससे मुझे 5 लाख लेने हैं। जब तक वो 5 लाख नहीं देता तब तक वो डेटर रहेगा। फिर 5 लाख के लिए वो गुड्स देगा तो भी एज अ डेटर दे रहा है। 5 लाख के लिए अगर वो पैसा चेक देगा तो भी वो डेटर की तरह ही दे रहा है, और अगर कैश देगा तो भी वो डेटर एज अ डेटर ही दे रहा है। हिज नेचर, उसका स्वभाव जब तक 5 लाख का पेमेंट नहीं होगा नहीं बदलेगा। याद रख लेना। होप थिंग्स आर क्लियर। तो सेल्स इज रियल in that it is goods, bank is personal in that it is asset, in that it is current asset, cash is real in that it is your asset, in that it is your current asset. Navdeep personal debtor है, पैसा लेना बाकी है तो asset, और 1 साल के अंदर तो पक्का ले लेंगे तो current asset. Hope story is clear. नवदीप रिटर्न गुड्स वर्थ 2 लाख। नवदीप को से हमें 5 लाख लेने थे, उसमें से 2 लाख के तो उसने गुड्स ही लौटा दिए। 5 लाख उससे लेने थे, उसने 2 लाख के गुड्स लौटा दिए, यानी अब मुझे उससे 5 में से 2 के गुड्स लौटा दिए, यानी कितने लेने? 3 लाख। Hope that is clear. उसने 2 लाख के गुड्स लौटाए, बेचा, वो गुड्स उसने लौटाया तो हमारे लिए गुड्स अंदर आए। उस गुड्स को मैं क्या कहूंगा? तो भैया सेल्स रिटर्न। और किसने लौटाया? तो नवदीप ने 2 लाख। 2 लाख सेल्स रिटर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एंड गुड्स, और नवदीप पर्सनल एंड स्टिल इज माय एसेट, और उसमें करंट एसेट। 5 लाख लेना था, 2 लाख के गुड्स लौटा दिए, यानी अब नवदीप इज योर डेटर बाय 3 लाख। दिमाग में रखना। आगे बोलते हैं, नवदीप रादर रिसीव्ड अ चेक ऑफ 2,80,000 फ्रॉम नवदीप इन फुल सेटलमेंट। 3 लाख लेने थे, 5 लाख का डेटर था, 2 लाख के रिटर्न किए, 3 लाख लेने थे। चेक कितने का दिया उसने? 2,80,000, और बोला सेटल। हमने मान भी लिया, तो 20,000 हमें कम मिल रहा है। वो जो कम मिल रहा है दैट्स माई लॉस। उस लॉस को कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। माई 3 अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड। नवदीप रिमेंबर 3 लाख। कैसे 3 लाख? 5 लेना था, 2 के गुड्स रिटर्न कर दिए,
तो बचा कितना 3। 3 के सामने हमें चेक कितने का मिला 2,80,000 का। 3 के सामने 280 का, तो 20,000 का क्या हुआ लॉस। उस लॉस को कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। होप थिंग्स आर क्लियर। नवदीप पर्सनल था, असेट था और करंट असेट था। क्यों था? क्योंकि अब फाइनली नवदीप बुक से बाहर हो गया। पूछना मत कि सर मुझे तो दिख रहा है, 2 दिन दे दो, उसके बाद नहीं दिखेगा। बैंक पर्सनल असेट करंट असेट डिस्काउंट अलाउड, it's nominal and loss. Hope things are making sense to everyone. कल भी किया, आज भी किया। रीजन सिंपल था, I wanted it to be crystal clear with all of you, and hopefully it is crystal clear with all of you. आगे बढ़ते हैं। Goods of 60,000 lost by fire. Insurance company accepted claim of 80% and received a check for same. पहले तो goods are lost by fire, यानी बिजनेस में जो goods थे अब वो आग लगी, राख बन गए, तो बुक से बाहर हो गए, बिजनेस से बाहर हो गए। तो पहला अकाउंट जो अफेक्ट हुआ दैट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कितने के गुड्स बाहर गए 60,000, विच इज बाय नेचर आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स, सो इट इज रियल एंड गुड्स। अब हमने इंश्योरेंस लिया था, हम भी स्मार्ट थे, मगर इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए, उन्होंने मुआयना किया और उन्होंने बोला देखो 60,000 के गुड्स हम 80% क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने वहीं का वहीं हमें चेक दे दिया। चेक दिया तो पैसा जाएगा बैंक में। होप दैट इज क्लियर। 8,648,000 का चेक दिया, तो ये हो गया पर्सनल असेट और करंट असेट। 60 के गुड्स गए, 48 का चेक मिल गया, यानी 12,000 का आपको कुछ नहीं मिला। समथिंग गोज आउट, नथिंग कम्स इन, इट्स अ लॉस। उस लॉस को कहेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, which is nominal and loss. Hope things are clear. आगे बढ़ते हैं। Withdrew from bank 30,000 for paying rent. For paying rent, expense is an expense provided it is expanded. Did I expand it right now? No. अभी तो मैं बैंक में गया, पैसा उठाया और बोला ये रेंट के लिए, तो अभी पे नहीं किया, तो अभी फिलहाल बिजनेस में कैश कम्स इन, सो इट इज कैश अकाउंट। कितना 30,000। फिर 20,000 उठाया फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर नहीं देख रहे कि एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस प्रोवाइडेड इट इज एक्सपेंडेड। पर्सनल यूज के लिए मैं जेब में डाला, घर ले गया, बिजनेस देखता रह गया कि यार मेरे बैंक से पैसा उठा, विराट ने जेब में डाला और ऑफिस में आने के बजाय घर चला गया। तो बिजनेस के बैंक से पैसा उठाया और विराट घर ले गया, विराट इज रिसीविंग बेनिफिट, उससे पैसा लेना बाकी है, तो वो बन गया हमारा डेटर। विराट्स ड्रॉइंग्स 20,000, और ये पैसा कहां से उठाया? तो बैंक से। टोटल कितना उठाया? 50,000। कैश रियल असेट करंट एसेट, विराट्स ड्रॉइंग्स पर्सनल एसेट करंट एसेट, बैंक पर्सनल एसेट current asset. Hope things are clear. The last one, paid rent 30,000 and 10,000 remained payable. अब ये जो 30,000 लेकर आए थे ना, अब वो पे करेंगे, मगर 30 पे किया, 10 पे करना बाकी है ना। टोटल रेंट एक्सपेंस इज 40,000. नाउ व्हाट इज रेंट? हमने किसी का प्रीमाइसेस यूज किया, सो किसी ने हमें सर्विस दिया जिसके सामने हमें पेमेंट करना है। सर्विस लिया यानी एक चीज पक्का हो गया, हमारा खर्चा तय हो गया। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। कितना खर्चा तय हो गया? 40,000। अब अगर पे किया तो कैश, और अगर नहीं पे किया तो क्रेडिट। क्रेडिट तो नाम आएगा जिसको पे करना है।
एक बंदा हुआ, नाम लिख देंगे राकेश, रमेश और सुरेश, वॉट एवर इट इज। एक से ज्यादा हुआ तो ये राकेश, रमेश, सुरेश को एक ग्रुप में लेकर आएंगे, उस ग्रुप को कहेंगे रेंट पेबल। What is rent payable representing? It is representing people. So it is basically personal जिनसे हमने सर्विस ले लिया है मगर जिनको पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी और उसमें करंट लायबिलिटी। कैश इज रियल एसेट और करंट एसेट। रेंट इज नॉमिनल एक्सपेंस and nothing to do with production, so indirect expense. Hope things are clear, hope this is making sense, and hope that everyone is super duper clear, or I can say crystal clear with this concept. ठीक है, you can check out in your textbook two things. जितने लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं और जिनको अभी भी लगता है टेक्स्ट बुक उनका बाइबल है, तो आपके टेक्स्ट बुक में देखना अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड वाला टॉपिक देखना, उसमें आपको दो ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे। नंबर वन, नन ऑफ द ट्रांजैक्शंस विल इवन मैच टू द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी आर डूइंग। मैं अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड की बात कर रहा हूं, नंबर वन। नंबर टू, ज्यादा से ज्यादा वो लोग टाइप की बात करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नोबडी, नो टेक्स्ट बुक, नो टीचर, चाहे स्कूल का हो, चाहे ट्यूशन का हो, चाहे यूट्यूब पर हो, सब टाइप और सब टाइप की बात कर रहा है। एंड नंबर थ्री, ये जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, ऐसी एक्सरसाइज आपको कहीं भी कोई भी बुक में या कोई भी टीचर नहीं करवाएगा। आपको कहीं बार लग भी रहा होगा कि यार ऐसा तो कुछ टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है भी नहीं, इसलिए ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ये जो मैं करवा रहा हूं ना, दैट इज समथिंग which is going to make sense after few weeks। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो प्रोसेस है वो मुझे ही पता है, इट इज वेरी मच टेलर मेड, ठीक है, ओरिजिनल है 100%। द ओनली थिंग इज आई हैव नॉट पेटेंटेड इट। तो मेरा जो प्रोसेस है वो मेरा है, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए ढूंढने का ट्राई भी मत करना, ठीक है। बट ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, और वो भी टेक्निकली 100% क्लियर करके। तो प्लीज स्टे इन दिस प्रोसेस एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। ये सम पहले करना, फिर इसका ही दूसरा वर्जन करना, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, एक बार आपका कंट्रोल आ जाएगा तो आई थिंक दिस वोंट टेक मोर देन 15 मिनट्स, और दूसरा सम करने में 15 मिनट, यानी आधे घंटे का होमवर्क। सो प्लीज गेट इट डन, ठीक है। सो as I always end, hashtag घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe, take utmost care of your mental and physical health, see you all tomorrow। कल कुछ नया करने वाले हैं, यही चीज को थोड़ा एलिवेट करने वाले हैं, तो कल का सेशन मिस मत करना। बाय, सी यू ऑल टुमारो।